So we had completed the summary section, and keeping the main theme of the poem, we are going to analyze the vocabulary part. So just look at the board what I have written. The words like damp means wet. The second word scarf, ashes and staring. So what I am trying to give you an idea that these are very simple words. As the writer was advocates the Meswaki language, and then he had translated it into English. So his native language was Meswaki. That was the reason he was not so much comfortable in using the higher quality of words. So while he was writing, what he had done, he had compared the language Meswaki and English together. Then he can easily pointed out his ideas. So that's why he had not able to use the difficult words of English. So that you have to analyze that with the use of the simple words, how he had projected, how he had reflected his affection towards his grandmother. Because जब आप simple शब्दों को प्रयोग करके भी बहुत deeper meaning बता पाते हैं, तो it's a quality of a good writer. So I had written the easiest word over here, because you have to analyze that with a good note of writing. Sometimes आप simple word से भी अच्छा creation कर सकते हैं, ठीक है. और इसमें जो मैंने बात किया था in the introduction part कि इसमें conditional clauses use हैं और models का बहुत use है कि if I would have, if I could have. तो these kind of conditional sentences will give you the idea of the procrastinated nature of the poet, कि वो बहुत ही दीर्घसूत्री थे, ठीक है. वो सोचा करते थे, इमेजिन करते थे कि वो ऐसा होता तो वो वैसा करते, ठीक है. तो इस ग्रामेटिकल स्किल को यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी बात को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है. तो पहले हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सिलरी, ठीक है. ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग. सो हियर द वर्ब्स बी, नाउ बी द फॉर्म ऑफ बी आर am, is and was, and also have and do. These are also auxiliary verbs when used with ordinary verbs to make tenses, passive forms, questions and negatives, and questions and negatives are called auxiliary verbs. तो ये क्या है, ये एक helping verb है जो हमें क्या मदद करता है, to make tenses, और टेंसेस बनाने में हेल्प करता है और पैसिव फॉर्म बताने में, ठीक है. और क्वेश्चंस भी बनाने में भी हेल्प करता है कि कुड आई यूज़ योर पेन. सो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे. और फिर नेगेटिव भी बताता है, ठीक है. आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब हम लोग बात करेंगे वर्ब्स कैन, लाइक कैन, कुड, मे, might, will, would, shall, should, must and ought are called modal verbs, also known as models. तो models क्या है, ये हमें एक sense of probability बताता है, एक sense of capacity बताता है, ठीक है. और an obligation भी है, जब हमें necessity बताता है कि you have to do that, you must, you must do that. This kind of obligation we are using in our day-to-day life. तो हमें पता नहीं चलता है कि कब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है. तो अगर आप पूरा कंप्लीट यूसेज ऑफ मॉडल्स देखेंगे, यहाँ तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है, अगर आप इसका कंप्लीट यूसेज देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे डे टू डे लैंग्वेज में आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन में ये कितना हेल्पफुल होगा. और आप इस कंडीशनल क्लॉज के साथ जो ये टेक्स्ट ऑफ जो पोएम का बिगनिंग हुआ है, आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि ये पोएम को किस तरह से वो अपने इमेजिनेशन को उस पोएट ने इसमें रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है. तो आज हम लोग वोकैबुलरी सेक्शन में हमने ये जाना कि विथ सिंपल यूज ऑफ लैंग्वेज. तो यूज ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे क्या था, यूज ऑफ लैंग्वेज जो था वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है. और विथ सिंपल वर्ड्स पोएट ने क्या किया है, बहुत अच्छा इमेजेस और सिंबल्स को रिफ्लेक्ट किया है, ठीक है.
तो एक बार मैं और बताना चाहूँगी कि सिमिली क्या होता है। सिमिली जब हम लोग टू सिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ like, such as, okay, so this is called simile. But when we compare two things directly, that is called metaphors. Just like this is the sky is an egg. यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जो स्काई है वो एग की तरह है, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे यू आर लाइक अ रेड रोज, तो इट इज़ अ सिमिली। तो इस पोएम का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, लाइक द लाइट द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड हिज ग्रैंडमदर लाइक द लाइट, तो वो उनके लिए एक लाइट की तरह थी। लाइट यहाँ पे क्या सिम्बलाइज कर रहा है? द रे ऑफ होप, द रे ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सिंबल्स और इमेजेस को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा पिक्चरस व्यू मिला है और पोएट ने सिंपल वर्ड्स के साथ बहुत ही बेहतरीन पोएम लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हमने बात किया। ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। दैट्स वाई मैंने बताया कि आप इसका यूसेज देख लें। आप टेंस फॉर्म में जाके कि कैसे ये टेंस किस फॉर्म में यूज़ होगा, यहाँ पे एम यूज़ होगा कि प्रेजेंट है, कि कंटिन्यूस में यूज़ होगा, कि पास्ट में यूज़ होगा। तो आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है इसको कर लेंगे तो आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और दूसरा जो पैसिव फॉर्म्स है, इन योर 9th स्टैंडर्ड एक्टिव टू पैसिव वॉइस का कन्वर्जन भी आता है। तो आप जो मैंने अर्लियर क्लासेस में भी बताया है, आप एक्टिव पैसिव वॉइस को प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। एंड वी हैड ऑल्सो डिस्कस अबाउट प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन भी फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। और यहाँ पे जो कंडीशनल क्लॉजेज है कैन, कुड, मे, माइट, ये आपके स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुड और वुड का प्रयोग क्यों किया गया है। द पोएट, वाई द पोएट हैड यूज सच कंडीशनल क्लॉजेज, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिकॉल हिज मेमोरी, ही वॉन्टेड टू रीलिव हिज लाइफ, इसीलिए उन्होंने इस तरह के मॉडल्स और कंडीशनल क्लॉजेज को यूज़ किया है, ठीक है। तो इस सेक्शन को, वोकैबुलरी को यहीं ख़त्म करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ द क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शन।